স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। This is our next subject, C703C, okay, and the module was your airport engineering. In the previous lecture, we were discussing different correction methods, right? What are the different correction methods that must be considered in order to find the corrected runway length, okay? The correction was done on this basic runway length. Now, basic runway length was what? The runway length which will satisfy some of the conditions. What were those conditions? Anyone? When we are saying, when we will call a runway to be a basic runway length, when that runway will be at the level of mean sea level, okay? When the airport will be at the mean sea level, then the runway in that airport will be your basic runway length. Also, there must be a level gradient, okay? I mean, there must be no gradient. It should, the runway should be in level condition, okay? And the temperature should be standard. The atmospheric standard temperature of that airport site, okay, should be 15 degrees centigrade. Why? Because the standard atmospheric temperature at mean sea level is 15 degrees centigrade. So these are the three main conditions. When we will say that if all this satisfies, then we can say that the runway in that kind of airport is basic runway length. But depending upon the place, our airport site may vary from place to place, okay? It will be above the mean sea level, okay? The temperature will not remain same. So for that reason, we need to do some corrections, okay? So what were the corrections? Correction for elevation, as I said, our airport will not always be in the mean sea level. It will be above the mean sea level, okay? So we need to do correction for elevation also. Again, correction for temperature. Again, correction for gradient. So this should be followed in a sequential manner. That means first we will do elevation correction, then we will do temperature, then we will go for gradient. Now tell me, these are positive corrections or negative corrections? Positive means Positive, ma'am. with the rise of elevation or with the rise of temperature or with the rise of with the increase of gradient, your runway length has to be increased, okay? That's why it is positive. We will give some brief, we go through one slide, there we will get some formulas, brief revision type, okay? And we will solve numerical. Now, correction to the basic runway length, these are the corrections, right? And this was as per ICAO, and the third one was as per FAA, okay? And this should be in a sequential manner. Now, correction for elevation was what? As I said, this is positive correction, and this was the formula, okay? This was the rate at which we have to increase our runway length. Please note down this formula, okay? Please note down this rate. 7% per 300 meter rise in elevation. That is the correction for elevation, okay? Correction for temperature was what? For 1 degree rise in temperature, we have to increase the runway length by 1%, okay? That means if your rise in temperature is 10 degree, then we have to increase the length of the runway by 10%. 1 for 1, okay? So 10% for 10 degree. Now what is rise in temperature? Rise in temperature formula was what? What is ART? Anyone? What is the full form of ART? Airport. Ma'am, airport reference temperature. Yes, very good. Airport reference temperature minus standard atmospheric temperature at a particular elevation. Elevation will be given. We have to find standard atmospheric temperature. Then we have to subtract it from ART. We will get rise in temperature. Okay. Ma'am, voice খুব lag করছে ম্যাম, কিছু শোনা যাচ্ছে না। Hello. এবার শোনা যাচ্ছে? Hello. কিছু শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। বাকিরা শুনতে পাচ্ছো? Hello. হ্যাঁ ম্যাম। আমাদের শোনা যাচ্ছে, আমরা শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি আমরা। নেটওয়ার্কের হতে প্রবলেম হতে পারে ও। আচ্ছা, now the third correction is what? Correction for gradient, okay? Again, this is positive and this is the formula. 20% for every 1% of effective gradient. Effective gradient was highest point minus lowest point by the length of the runway. It will be in percentage, that's why it is multiplied with the 100. So this is the formula, okay?
Now let us go directly to the numerical. See what they are asking. They are asking calculate the actual runway length. Okay, actual runway length, that means the corrected runway length. If your basic runway length is this much, elevation of the airport is this much, effective gradient is this much. See, monthly mean of average daily temperature, this is your capital T suffix A. Okay, and monthly mean of maximum daily temperature, this is capital T suffix M. Where we will use this two term? We will use this term for determining ART, airport reference temperature. Okay, in that case we will use this TA and TM. So these are the data. Okay, now first what we have to do? We have to do which correction? Correction for elevation, right? Then we will go for correction for temperature, then correction for gradient. So first step is for correction for elevation. Now what was the basic runway length? It is 2500. So the first length is what? 2500 basic. We have to do correction of elevation in this length only. Okay, इसी के ऊपर हमको ये correction for elevation first apply करना है. और इसके लिए क्या चाहिए? Since it is elevation, so we must have idea about the elevation. और elevation कितना था बोला है? 500 मीटर. Okay, so 500 मीटर is the elevation. अब बोलो इसका करेक्शन क्या है? करेक्शन फॉर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या था? लिखे हो? मैम ওটা 7% অফ বেসিক রানওয়ে লেন্থ হবে। एक मिनट। ম্যাম 7% ইনটু 500 বাই 300 হবে। यस 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 वेरी गुड। বাকিরা ম্যাম করছে না তার কেন? সঙ্গেও তো 2500 টা মাল্টিপ্লাই করতে হবে কারণ ওটা তো বেসিক রানওয়ে লেন্থ। यस सी, तो तुम्हारा क्या था? करेक्शन इज इक्वल्स टू फॉर एलिवेशन क्या है? 7% पर 300 मीटर राइज, राइट? इसका अगर हम सिंपल भाषा में करेंगे तो क्या करेंगे? 300 मीटर के लिए 7% करेक्शन है। करेक्शन कितना? 7% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। ओके, तो फिर हम लोग का एलिवेशन कितना है? 500 है, तो 500 के लिए कितना आ रहा है? सिंपल यूनिटरी मेथड। 300 के लिए 7% है, 1 मीटर के लिए 7% बाई 300, तो 500 के लिए कितना है? इंटू 500। मैम 11.66 11.66% आ रहा है, राइट, ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। ठीक है, इतना परसेंटेज हमको करेक्शन करना है ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। तो व्हाट इज द करेक्टेड लेंथ? देन कितना करेक्शन मतलब कितना ऐड करना है हमको? दिस मच वी हैव टू ऐड। ठीक है, मैम मतलब ওটার সঙ্গে তো 2500 টা ऐड করতে यस राइट। सो इतना ऐड करना पड़ेगा किसके ऊपर? फर्स्ट वी हैव टू डू करेक्शन ऑन बेसिक रनवे लेंथ। तो इतना है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है, राइट? बढ़ाना क्यों है? ये है 300 के लिए हम बोले थे 7% करके बढ़ाएंगे, तो 500 के लिए 11 पॉइंट समथिंग परसेंट बढ़ाएंगे। अब किसका परसेंटेज है वो? बेसिक रनवे लेंथ का करके, तो इतना बढ़ाना है। सो योर करेक्टेड लेंथ आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन इज 2791.67। देखिए, हाँ 2791.67। वेरी गुड। अब दूसरा स्टेप क्या है? करेक्शन फॉर टेम्परेचर, राइट? सिक्वेंशियल में जाना है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अब इसके लिए ये 3 डाटा हमको चाहिए रहेगा। ओके, तो पहले निकालो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट दैट एलिवेशन। यहाँ पे एलिवेशन कितना है? 500 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर एट मीन सी लेवल बाय माइनस दिस वन। ओके, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट मीन सी लेवल कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एट 500 में कितना होगा वो निकालो। फिर राइज इन टेम्परेचर हमको चाहिए, जिसके लिए क्या चाहिए? ये वाला वैल्यू चाहिए एंड एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर? वो हम निकालते हैं। पहले ये वाला निकालो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है? At 500 it is coming to be, देखो 11.75 डिग्री आ रहा है। बस इस फॉर्मूला में, ठीक है। You got standard atmospheric temperature. Now what we have to find? Airport reference temperature. Airport reference temperature के लिए क्या चाहिए था? TA and TM. TA, TM given. Now what is the formula of airport reference temperature? TA plus TM minus TA by 3. तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालो।
मैम 17.33 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আচ্ছা 17.33 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এটাই এসেছে সবার? यही आया है तो सबका? হ্যাঁ ম্যাম। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमको चाहिए राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन दिस टू। राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज सिंपल, जितना राइज इन टेम्परेचर है उतना ही परसेंटेज हमको करेक्शन करना है, मतलब 1% पर 1 डिग्री राइज, राइट? तो जितना डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है उतना ही परसेंटेज हमको करेक्शन करना पड़ेगा इन केस ऑफ करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है? इतना 5.58%, मतलब इतना परसेंटेज ही हमको, एक्चुअली 5.58 डिग्री आ रहा है तो उसको हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 5.58 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब निकालो इसका क्या होगा, देन व्हाट विल बी योर करेक्टेड लेंथ? तो टेम्परेचर करेक्शन कितना होगा अगर मीटर में करेंगे तो? अब बोलो ये वाला इतना परसेंटेज हमको बढ़ाना है लेंथ, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर सिंस टेम्परेचर करेक्शन इज पॉजिटिव, सो वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ। कितना? 5.58%। लेकिन किसका 5.58% किसका? कौन से लेंथ का? ম্যাম বেসিক রানওয়ে লেন্থ। नो 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 না नो, ম্যাম, যেটা কারেকশন রাইজ এলিভেশন যেটা यस, बेरोलो आफ्टर 291 एलिवेशन करेक्शन के बाद जो तुम्हारा बेसिक रनवे लेंथ के ऊपर तो हम ऑलरेडी करेक्शन कर दिए एलिवेशन के लिए, राइट? देखो यहाँ पे बेसिक रनवे लेंथ कितना था? 250 था, वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, एलिवेशन के लिए थोड़ा बढ़ाना था, बढ़ के इतना हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर करेक्शन, राइट? तो इसी को और बढ़ाना है, मतलब इसी को और बढ़ाना है, तो फिर जो भी परसेंटेज आएगा किसका होगा? ये नया वाला का। ओके, तो 5.58% ऑफ द रनवे लेंथ दैट इज आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन। ओके, करके आ रहा है कितना? 155.86 मीटर। तो आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन तुम्हारा रनवे लेंथ कितना आया था? इतना ম্যাম आया। আপনি ওখানে 27.94 ডিভাইডেড বাই 100টা ভুল লিখেছেন। ও সরি সরি, এটা 5.58 হবে, তাহলে এটা কত আসবে হ্যাঁ দেখো। ম্যাম, ওটা 155.78 মিটার আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, this will be your 5.58, right? Very good, very good, sorry 5.58। तो आएगा कितना? यही आ रहा है ना, 155 समथिंग आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी योर न्यू करेक्टेड लेंथ? অ্যাড করতে হবে এইটাকে ওই তার সাথে 2791 এর সঙ্গে यस 2791.67 यस, आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन करने के बाद जो लेंथ आ रहा है, देखो बेसिक रनवे लेंथ था पहले, फिर टेम्परेचर करेक्शन एलिवेशन करेक्शन किया तो एक लेंथ बढ़ा, अब उसको और बढ़ाना है आपको, राइट? तो ये बढ़ के इतना हुआ था, अब इसी पे और ऐड करना है, तो करके आ रहा है तुम्हारा कितना? 2947.54। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? मतलब जितना बढ़ते आ रहा है उसको ही बढ़ाते जाना है बस। नाउ दूसरा लास्ट में क्या आएगा? करेक्शन फॉर, अच्छा इसके बाद देयर विल बी वन मोर स्टेप, ओके, दैट इज चेक। वी हैव टू चेक दैट द कंबाइंड करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर मस्ट बी लेसर देन 35%, ये चेक करना है, ओके। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे? करेक्शन कैसे चेक करेंगे कि कितना पहले इनिशियली कितना था, ठीक है, आफ्टर 2 करेक्शन, मतलब 2 बार करेक्शन करने के बाद उसका लेंथ कितना आया? बड़ा, सपोज इनिशियली 100 था, ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद 250 हुआ, सॉरी एलिवेशन करेक्शन करने के बाद 100 था, पहले बेसिक रनवे लेंथ 100 था, ठीक है, एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन करने के बाद उसका 150 मीटर हो गया है, ओके। देन व्हाट इज द टोटल करेक्शन? देन कितना बड़ा इसका लेंथ, कितना परसेंटेज बढ़ा? इनिशियली इट वाज 100, ठीक है,
एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन करके इसका टोटल लेंथ हो गया कितना, अब फाइनल लेंथ हो रहा है कितना 150। तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 100 था 150 हो गया, राइट। बेसिक रनवे लेंथ था 100 और ये बढ़ गया 150, तो 50% बढ़ा है, राइट। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है 50%। सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा रनवे लेंथ आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर। वो लेंथ कौन सा है, ये वाला लास्ट वाला, ओके। माइनस बेसिक रनवे लेंथ डिवाइडेड बाय बेसिक रनवे लेंथ इनटू 100, यहाँ पे 100 होगा, ओके, इनटू 100। तो आके कितना आ रहा है 17.91%, विच इज लेसर देन 35, सो इट इज ओके, ठीक है, ये सेटिस्फाइड है, मतलब इट शुड बी विद इन दिस लिमिट, ओके। अगर कुछ कुछ केस में अगर ज्यादा आएगा तो फिर क्या करोगे, मतलब कि तुमको फिर से यू हैव टू गो टू द फील्ड एंड कलेक्ट अगेन न्यू डाटा, फिर से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। लेकिन इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स तुम लोग का हमेशा ये वाला 35 के अंदर ही आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम देता है ये 35 के अंदर ही आता है, मतलब सेटिस्फाई कर दे रहा है, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला, मतलब 20% फॉर एवरी 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, ओके। मतलब 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए करेक्शन कितना है 20% है। अब बोलो हम लोग का इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना था प्रॉब्लम में, योर इफेक्टिव ग्रेडियंट वाज 0%, मैम 0 ছিল। 0, देन व्हाट विल बी योर करेक्शन, 1% के लिए 1 इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए 20% इंक्रीज करना पड़ता था हमको लेंथ। अब ये वाला 0 है ग्रेडियंट, मतलब क्या है, दिस इज द लेबल्ड ग्रेडियंट, सो नो नीड टू डू करेक्शन, राइट। कोई टॉप मोस्ट या कोई लोअर मोस्ट ऐसा पॉइंट है नहीं, सब एक ही लेवल में है, इसलिए ये इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, राइट। So that's why that is means it is a labeled plane, labeled area, कोई ग्रेडियंट नहीं है। तो जहाँ पे ग्रेडियंट नहीं होगा वहां पे तो कोई करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, सो योर करेक्शन विल बी सिंपल 0, मतलब कोई करेक्शन जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो नो करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो अल्टीमेटली इसका फाइनल आंसर कितना होगा 294.4754, यही होगा, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल करेक्टेड लेंथ, और इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2950 मीटर। क्लियर एवरीवन? हाँ मैम। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला खुद करके देखो तुम लोग अब। मनी रूल से শুনতে পাচ্ছ না তুমি? আচ্ছা তুমি, ম্যাম ম্যাথসটা একবার দেখাবে? ম্যাম কোয়েশ্চেনটা দেখান। আচ্ছা কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা, the length of runway under standard condition, मतलब this is basic runway length, ठीक है, is 1620 meter. The airport site has an elevation of 270 meter, बोल दिया है। Its reference temperature, again this is what, this is airport site बोला, तो this is airport reference temperature, okay. So airport reference temperature is this much. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.2, पिछले वाले में 0 था, अभी यहाँ पे दे दिया effective gradient, so determine the corrected runway length. सेम स्टेप सेम वही है, सिर्फ पिछले वाले प्रॉब्लम में लास्ट स्टेप मतलब कुछ करने का नहीं था क्योंकि वो 0 था, इसमें लास्ट स्टेप भी आएगा। तो बेसिक रनवे लेंथ दिया है, ई दिया है, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया है 0.2 एंड ART दिया है 32.94, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बोल ही दिया है, यू नीड टू कैलकुलेट ART। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है तुमको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निकालो एट द एलिवेशन ऑफ 270 मीटर। कितना आ रहा है
102.06। 102.06, हाँ 102.06 या 102, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब इसी के अंदर, इसी स्टेप के अंदर सब स्टेप क्या है? मैम ऐड করব ওটার সঙ্গে Yes, yes, we have to increase because this is positive correction, so we have to increase the length. Which length? We have to increase this length, okay, basic runway length. तो increase करके कितना आ रहा है देखो 17, ओहो ये क्या कर दिया मैं, यहाँ पे 100 होगा। Okay, so I think this step is over. ম্যাম কোয়েশ্চেন একটু দেখাবেন, ছবি তুলে নেবো। I know. See, this is the question. ঠিক আছে ম্যাম। বাকিদের কি করছো গো? বাকিদের কোনো পাত্তাই নেই, চুপচাপ ম্যাম স্ট্যান্ডার্ড অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার 13.245। 13.245, দেখতে হবে। হ্যাঁ 13 পয়েন্ট, আমার 18 এসেছে, তুমি সেরকমই ক্যালকুলেট করো। সাগনিক নেই, এরা অন করে চলে গেছে নাকি? আছি ম্যাম। তো রেসপন্স করছো না কেন? অঙ্ক করতে হবে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। মান্না, কৌশিক মান্না, ম্যাম পার্সেন্টেজ কারেকশন 19.695। हाँ हाँ। सो टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 270 कितना है? मीन सी लेवल में निकालो स्टैंडर्ड, दैट इज 15 माइनस 0.0065 इंटू 270 करके आ रहा है कितना? 13 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। এখানে জিরো কোথায় আমার? ঠিক আছে, airport reference temperature already given, so rise in temperature what? ART minus this one, standard atmospheric temperature. So 19.72 आ रहा है सबका टेम्परेचर करेक्शन। नाउ 19.72% ऑफ विच लेंथ? बेसिक रनवे लेंथ या करेक्टेड लेंथ फॉर आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन फॉर एलिवेशन? ম্যাম বলছি কারেক্টেড রানওয়ে লেন্থ ওই মানে ক্লাস করার পর ওটা 2061.6 এসেছে। See, temperature correction is 90.72% of runway length which is obtained after applying correction for elevation. मतलब कि जी 1722 आफ्टर इसके ऊपर हमको करेक्शन करना है कितना? 90.72, राइट। तो 90.72 ऑफ परसेंटेज ऑफ 1772, 340 आ रहा है। नाउ वी हैव टू ऐड दिस टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये करेक्शन किसके बाद आ रहा है? एलिवेशन के बाद आ रहा है। तो एलिवेशन के बाद हम लोग का करेक्टेड लेंथ ये आया था, इसको और बढ़ा देना है बाय एडिंग दिस वन। तो आ रहा है कितना? 2062, ठीक था ম্যাম 2061.6 ঠিক আছে, এসেছে। ঠিক আছে, ও অ্যাপ্রক্স 2062 মিটার। সবার কি এসেছে 2062?
061.219 আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, অ্যাপ্রক্স এলেই হলো। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? करेक्शन फॉर एलिवेशन हुआ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? কারেকশন total ফর correction नो, नेक्स्ट स्टेप इज ও ম্যাম চেক হবে हाँ चेक, टोटल करेक्शन, ये दोनों का करेक्शन तुम्हारा 35% के अंदर है कि नहीं। ओके तो देखो, सो रनवे लेंथ आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर माइनस बेसिक रनवे लेंथ, तो बेसिक रनवे लेंथ तुम्हारा कितना था 1620 और ये वाला आ रहा है 2062। ম্যাম 35% এর নিচে Yes. আছে So it is okay, right? So now we can go to the fourth step, that is correction for gradient. ये वाला कितना आएगा? इसके लिए क्या चाहिए? इसका कॉन्सेप्ट है दिस वन, 20% फॉर एवरी 1 डिग्री 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेडियंट तुमको दिया है, व्हाट इज दैट? 0.2 बोल दिया है। ओके सो 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए 20% करेक्शन है, तो 0.2 के लिए कितना है करेक्शन? 20% into 0.2 will give you 4%. Okay, again this 4% of which length, which we have opted after doing which correction? After doing elevation या temperature? किसका 4% होगा? টেম্পারেচার ম্যাম লাস্টে যেটা বেরোলো হচ্ছে Yes. 2062 Yes, 2062, yes, which is after applying temperature correction. Okay, करेक्शन फॉर मतलब दोनों को जो भी है, तो 2062। ओके आ रहा है कितना? इतना आ रहा है 82.48। इसको ऐड कर देंगे किसके ऊपर? लास्ट वाला जो है, प्रीवियस वाला। সবাই আনসার কমেন্টে লেখো তো, খাতায় কি করছো করছো না বুঝতেও পারছি না। এরা समीर कुमार बर्मन, রণজয়, शुभजीत, तौसीफ, बोलो प्रॉब्लम कर रहे हो, समझ में आ रहा है या डाउट है? अरिंदम ম্যাম ডান डन। ম্যাম 2150 মানে 21 অ্যাপ্রক্স করে, 2150। 2144.48 মানে আমি অ্যাপ্রক্স করে বললাম, আমার 2145 পয়েন্ট সামথিং আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্স রাউন্ড ফিগার করে তাই তো? हाँ हाँ तो वही इसके ऊपर ऐड कर दो, तो आ रहा है तुम्हारा 2144 समथिंग। पृथा का भी सही है, ये श्रीमोन का भी सही है, और तुम्हारा प्रतीक का भी सही है। ओके सो दिस इज द मेथड, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पे ম্যাম আর सिंपल क्या নিউমেরিক্যাল দেবেন না ना আর देवो ना देবেন না। आर देवो ना आर देवो ना, सुनो एक इसमें सिंपल प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सब एक साथ दे दिया है और तुमको ये सब डाटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जैसे एआरटी का दे दिया है, सिर्फ टीएटीएम लगेगा। ठीक है, जैसे इफेक्टिव ग्रेडियंट ये वाला भी दे दिया, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम में क्या होता है, दे विल नॉट गिव यू दिस इफेक्टिव ग्रेडियंट। ओके तब कैसा देगा? तब तुम लोग को वो जो प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे बहुत सारा एलिवेशन निकाल के, ठीक है, सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके, इन दैट वे वी हैव टू फाइंड इफेक्टिव ग्रेडियंट। और तुम लोग को टेबल दे देगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालने के लिए, मंथली भी दे सकता है या ईयरली वाला वो जो है। ओके सो इसमें सिर्फ डायरेक्ट वाला दिया है, वही हम सॉल्व कर दिया है। आई थिंक ऑल क्लियर। Yes, ma'am. Topic will be your taxiway design. Okay. Now, Jara, those who have already completed or have no doubt, okay, please submit your work. जैसे भी रफ वर्क हो, जैसे भी हो, जो भी तुम अभी किए हो वो सबमिट करो क्लासरूम में। ओके শুধু ম্যাম লাস্টের সামটা তো, তার আগেরটা তো না? হ্যাঁ লাস্টের, মানে তুমি যদি আগেরটাও করে থাকো সেটাও সাবমিট করতে পারো, নো নো প্রবলেম। বাকিদের হয়েছে? তা কে করছে বলছিল তো?
শুভজিৎ বিশ্বাস দত্ত, তোমরা কি আছো গো? হ্যাঁ ম্যাম, তো করছো, চুপচাপ বসে আছো? না না করছি। ডাউট নেই তো? না না, ওকে, তাহলে তোমরা এটা করে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দাও। ওকে, তাহলে আজকে এই অবধি থাক, তোমাদের আবার নেক্সট ক্লাসও আছে। থ্যাংক ইউ। আজকের মতো দিলেই হলো তো? হ্যাঁ, এবার তোমরা গিফট করতে পারো, ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসের জন্য।